والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کافی دیر سے علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام اور فضلائے اعظام سے آپ سماعت کر رہے تھے. میں بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا. ابھی آپ نے بہت اچھی شاعری، شاعر اسلام، شاعر حق العزیز، شاعر انقلاب، فکر و فہم کے شہنشاہ، شاہکار ترنم حضرت علامہ مولانا محمد مظہر اقبال تیغی سے آپ نے سماعت کی. دل باغ باغ ہو گیا. اور اس سے پیشتر آپ نے عزیزم معصوم سنگم سے بھی آپ نے سماعت کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آغاز گفتگو سے قبل تمام کائنات کے مرکزی عقیدت جان عالمین مراد المشتاقین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، مہر چرخ نبوت، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز رضا، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، نو شہ بزم جنت، جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃً الفتن درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور بابلند آواز پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان میں تر و تازگی کے لیے اپنا ایمانی، حقانی، نورانی، مذہبی، دینی، قومی، جنتی کلمہ پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، جسے ہم اور آپ میلاد کہتے ہیں. میلاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنے عشق و الفت کا اظہار کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ، عشق رسول بہت بڑی شے ہے، محبت رسول بہت بڑی شے ہے. جس کے دل میں محبت رسول نہیں، عشق رسول نہیں، وہ انسان ایسی محفل منا ہی نہیں سکتا. اور عاشق بننے کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے انسان سچا عاشق اور پکا محب رسول کہلاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک سچی حکایت بیان کرتا ہوں، سچا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ عاشق رسول ہوتا کیسا ہے، عاشق رسول کی پہچان کیا ہے. عاشق رسول پر جب باری آ گئی جان دینے کی تو وہ جان کی پرواہ نہیں کی. عزت دینے کی باری آ گئی تو عزت کو قربان کر دے. یہاں تک کہ گھر، مکان، دکان، در، دروازہ سب کچھ ذات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. انہی عاشق رسول میں سے ایک عاشق حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے بہت بڑے محب، بہت بڑے عاشق اور بہت ہی زیادہ الفت کرنے والا حضرت حنظلہ تھے. ان کی شادی کی پہلی رات ہے. نئی نویلی دلہن کا چہرہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہے. اسی درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرتا ہے الجہاد الجہاد. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے جیسے ہی یہ کان میں یہ آواز
पहुंची, कान से ये आवाज टकराती है तो उनके मादवी नशा का इश्क खत्म हो गया और वो अचानक बिस्तर पर से उठ खड़े हो गए। नई नवेली दुल्हन ने हजरत हंसला के दामन को थामा और उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा, शरीके हयात, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई खता सरजद और वाक़ई हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। हजरत हंसला ने कहा कि तुमसे कोई गलती, भूल और खता नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि मेरा महबूब मुझे बुला रहा है, मेरा नबी मुझे बुला रहा है। ये कैसे मुमकिन हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी में मसरूफ हो, मशगूल हो और बिजी हो और मैं दुनियावी नशा में मुलव्वस रहूं? ऐसा हो नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि जहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना बहे, वहां पर हंसला का खूने जिगर बहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अपनी बीवी से हजरत हंसला कहता है, शरीके हयात, मेरा दामन छोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि उनकी बारगाह में पहुंचने में ताखीर हो जाए। ये तो ईश्वरे इश्क और अक़लीम मोहब्बत का बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है ये सब उन्हीं का अता करता है। शरीके हयात, मेरा दामन छोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि मुझे ना पाकर मेरे महबूब का चेहरा न मुरझा जाए, उनका चेहरा न उतर जाए। शरीके हयात, मेरा दामन छोड़ो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हंसला अपनी बीवी को कहते हैं कि ऐ मेरे शरीके हयात, ऐ मेरे गौज़े मोहतरमा, मैंने सिर्फ निकाह के चंद कलमात ही नहीं अदा किए थे, बल्कि तुम्हारे साथ इस तवीलो अरीज़ जिंदगी में ज्यादा दूर तक के सफर करने का मैंने अहद पैमान किया था। ठीक इसी तरीके से जब मैं ईमान लाया तो मैंने अपने नबी से कुछ वादा भी किया था। अब वो इम्तिहान का वक्त आ गया है, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम चाहती हो कि मेरी बदनामी हो, अरब के नौजवानों में मेरी बेवफाई का चर्चा आम किया जाए। तुम तो जानती हो कि हम अहले अरब अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। जिसको जबान दे दिए है उस जबान पर हम लोग अमल पैरा होते हैं, उस पर हम लोग अमल करते हैं, क्योंकि ये हमारे निशान इम्तियाज है, तफाकुर की ये शान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद हज़रत हंसला कहते हैं, शरीके हयात, जरा सोचो कौन बुला रहा है? वो बुला रहा है जो मेरे जिंदगी का साथी है, हश्र का साथी है, कब्र का साथी है, मैदान माशर का साथी है। जहाँ कोई काम ना आए वहाँ वो महबूब काम आता है। भला इसकी बारगाह में मैं कैसे न जाऊँ? इसकी बारगाह में जाने से कौन इनकार कर सकता है? शरीका हयात, मेरा दामन छोड़ो। हज़रत हंसला की बीवी ने उनके आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया और हज़रत हंसला ने भी उनके आंसू को अपने आस्तीन और अपने कपड़ों में जज्ब करके कहा, शरीके हयात, मैं उस राह का मुसाफिर हूँ कि अगर बच गया तो गाजी, मर गया तो शहीद, बच गया तो फिर मिलूंगा, वरना मैदान माशर में मुस्तफा के सहारे एक दूसरे को तलाश कर लेंगे, एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वो जज्बा था, यही वो शौक था, यही वो मोहब्बत थी जिसकी कारफरमाई में इस्लाम इतनी तेजी से जज़ीरे अरब से फैला कि जब पैगंबर इस्लाम ने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा के मौके से दिया था तो आपके सामने एक नहीं, 10 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, बल्कि 1,24,000 सहाबे किराम की जमात मौजूद थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं वाक़या लब नहीं छोड़ना चाहता, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। ये इस्लामी लश्कर रवा दवा हुआ, उसी के साथ साथ हज़रत हंसला भी
अपनी जवासाला उमंगों को लेकर रवा दवा हुए। अब इस्लामी लश्करों के साथ ये चले गए, दोनों तरफ से जंग शुरू हुई और जब आखिर में नतीजा निकला तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शहीदों की लाश को, उनके लाश को इकट्ठा करो। शहीदों की लाश को इकट्ठा किया गया। उस वक्त हैरत की इंतहा न रहे। हजरत हंज़ला न तो जिंदों में है, यानी नहीं गाजियों में है, नहीं नहीं उनकी लाश है, नहीं वो मुर्दों में है। पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया कि हजरत हंज़ला की लाश को तलाश करो। अब सहाबे किराम हजरत हंज़ला की लाश की तलाश में निकल जाते हैं। मैदान जंग का चप्पा चप्पा, गले गले और उनके गोशा गोशा को छान लिया गया। हजरत हंज़ला की लाश का पता नहीं लगा, उनकी लाश का पता नहीं लगा। ये लोग मायूस होकर लौट करके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मैदान जंग का चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन कहीं हंज़ला की लाश हमें न मिली। पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया, फिर जाओ तुम तलाश करो। ये लोग जाते हैं, फिर तलाश करते हैं, गोशा गोशा तलाश कर लिया गया, जगह जगह तलाश हुई, लेकिन हजरत हंज़ला की लाश न मिली। ये लोग फिर आते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं हाथ बांधकर, बाद खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, हजरत हंज़ला की लाश हमें न मिली। पैगंबर इस्लाम ने अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा दिया, अचानक मुस्कुरा दिया। उसके बाद फरमाते हैं कि अब जाओ तुम हंज़ला की लाश को तलाश करो। सहाबे किराम हजरत हंज़ला की लाश की तलाश में चल जाते हैं। हजरत हंज़ला की लाश मिल जाती है। सहाबे किराम हजरत हंज़ला की लाश को पैगंबर इस्लाम के कदमों में रख देते हैं। उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे सामने क्या है? और हजरत हंज़ला की लाश पानी में शराबोर थी। पैगंबर इस्लाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या बात है, ये लाश तो पानी में शराबोर है। तब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस वक्त मेरा मुनादी ऐलाने जंग के लिए गया था तो हजरत हंज़ला की शादी की पहली रात थी, उस पे गुस्ल वाजिब हो गया था, उस पे गुस्ल फर्ज था। और ये ज़ौक़ शहादत लिए हुए और लिक़ाए शहादत लिए हुए जंग की मोहब्बत में और मेरी मोहब्बत में ये निकल चुके और इसी आलम में इसकी जान चली गई, राय हक में शहीद हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस पर ये करम हुआ, ये फज़ल हुआ कि फरिश्ते आसमान से आए और हजरत हंज़ला की लाश को उठा करके आसमान पर ले गए। ये फरिश्तों की झुरमुट में, मलाइका की गोद में डाला करके आ रहे हैं। ये पानी यहाँ का नहीं, ये पानी वहाँ का है। और एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने हजरत हंज़ला के बारे में फरमाया था, गसीलुल मलाइका। तो तारीख़ इस्लाम, आपका नाम तारीख़ इस्लाम में आपका नाम कम इस्तेमाल हुआ है और गसीलुल मलाइका ज्यादा इस्तेमाल हुआ। आपने देखा जब वक्त आ गया तो पीछे मुड़कर सहाबा किराम कुछ नहीं देखा, नामूसे रसालत पर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। नई नवेली दुल्हन का चेहरा सामने हो, कोई छोड़ करके जा सकता है? जाएगा तो घर के आदमी, दरबार वाले, गुजर आदमी रोकेंगे, लेकिन जिसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत सरायत कर जाती है, इश्क का चिराग रोशन हो जाता है, तो वो इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी रिफत के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं, उनकी रिफत के सामने कोई हमारी रिफत नहीं। और हमें जो भी इज्जत मिली है, जो भी रिफत मिली है, मुस्तफा सल्लल्लाहु की वजह से मिली है। यही वजह है कि हम लोग जनाब मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। और जो उनका गुलाम हो जाता है तो उनका भी मकाम बुलंद बाला हो जाता है। जो उनका गुलाम हो जाता है और उनकी मोहब्बत जिसके दिल में सरायत कर जाती है, वो भी अल्लाह वाला हो जाता है। और बज़ाहिर आप उसे मुर्दा समझेंगे, लेकिन वो जिंदगी के कई मानों में आगे बढ़ गए होते हैं। क्या आपने नहीं देखा? हजरत
साबरे कलियनी का आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? उनका मज़ार पाक कहाँ है? कलियत शरीफ में है कि नहीं? साबरे पाक अल्लाह के बरगज़ीदा और मकबूल बंदा वलिये कामिल है। अब अल्लाह वाले मरने के बाद कैसे जिंदा रहता है, एक झलक मुलाहिजा कीजिए। किसी ने कहा कि हुजूर कि हम फना और बका बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है कि फना क्या चीज है, बका क्या चीज है। तो हुजूर साहिब पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो इसका जवाब मैं कभी दे दूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं था कि साहिब पाक को जवाब मालूम नहीं था। किताबों का सहारा लेकर के या उलमाए इस्लाम से करीब होकर के इस मसले का वो हल करते और बाद में जवाब देते। उन्हें आपको प्रैक्टिस करके बताना था कि देख लो फना ये है और बका ये है। कुछ दिनों के बाद साहिब पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद खास को बुलाया और कहा कि देखो जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो तुम लोगों में से कोई न मुझे नहलाना और नहीं कफनाना और नहीं मेरा जनाजा पढ़ाना, बल्कि एक घोड़सवार आएगा जो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत उनके मुरीद ने नोट कर लिया। कुछ दिनों के बाद हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। अब लोगों को वो वसीयत याद आई। जब लोगों ने गुस्ल का इरादा किया तो हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को एक कमरा में बंद कर दिया, पानी भी रख दिया, कफन भी रख दिया। जब तक गुस्ल के आसार मालूम होते रहे दरवाजा बंद रहा। जैसे ही ये कैफियत खत्म हुई, ये हालत खत्म हुई, तो दरवाजा खोला गया तो क्या देखते हैं, हुजूर साबिर पाक नहलाए भी जा चुके हैं और कफनाए भी जा चुके हैं। गुस्ल भी हो चुका है, कफन में भी मलबूस हो चुके हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त लोगों की हैरत की इंतहा न रहे। अब उनकी लाश को उठा करके एक ताबूत में रख दी और उसके बाद जनाजा गाह में लोग लेकर चल दिए। जहाँ पर जनाजा गाह है वहाँ पर सब के सब पहुँचे और लाइन में लग गए और उस घुड़सवार का इंतजार होने लगा जो साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। कुछ दूर गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया। लोगों ने समझा कि ये किसी घोड़सवार की आमद की आहट मालूम हो रही है। सब के सब लाइन में खड़े हो गए, सफे दुरुस्त करने लगे। वो घोड़सवार आता है और डायरेक्ट जनाजा के सामने खड़ा हो जाता है और वो नमाज पढ़ाते हैं। सब लोग उनकी इब्तिदा में नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद वो घोड़सवार जाने लगा तो मुरीद खास ने उनके घोड़े की नकील को थामा और कहा कि हुजूर आपको मालूम है आप किसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए हैं? ये कोई मामूली इंसान नहीं था, ये कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि इनके हाथों पर लाखों मुसलमान बैठ है, लाखों इनके मुरीदीन हैं। जब कल इनकी तारीख लिखी जाएगी, इनकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो इनकी तारीख अधूरी रह जाएगी। लोग पूछेंगे कि साबिर कलियनी की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा आप अपना नाम बताइए या कम से कम आप अपने चेहरे से नकाब को उलट दीजिए ताकि हम आपकी शनाख्त कर सके, ताकि आपकी हम पहचान कर सके कि आप कौन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस घोड़सवार ने अपने चेहरे से नकाब को उल्टा तो क्या देखते हैं कि
सामने कोई और नहीं था बल्कि साबिर पाक खुद थे। उस वक्त हैरत की इंतहा दे रही। तब आपने कहा और मुरीदों ने कहा कि हम ये क्या देख रहे हैं, ये क्या मामला है, अभी तो हम दफन करके आ रहे हैं और अभी आप जा रहे हैं, क्या मामला है। तब साबिर पाक ने कहा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि हुजूर हम फना और बका बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है कि फना क्या चीज है, बका क्या चीज है। तो उस सवाल का जवाब आज ही पर मैंने टाल रखा था। सुनो, जिसको तुम ताबूत में देखे हो, जिसको तुम कब्र में उतारते हुए देखोगे, ये क्या है, फना है। ये क्या है, फना है, खत्म होने वाली चीज है। और जिसको तुम घोड़े पर देख रहे हो और जाते भी देखोगे, ये क्या है, बका है, ये हमेशगी की जिंदगी, ये है हमेशगी की जिंदगी। यहाँ है तो रूह का ताल्लुक है, यहाँ से जाने के बाद रूहानियत का ताल्लुक हो जाता है और रूहानियत कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा बरकरार रहती है। तो रूह से ज्यादा रूहानियत को मजबूत कीजिए, रूह से ज्यादा रूहानियत को मजबूत कीजिए। और मोमिन का जो दिल होता है ना, वो बहुत बड़ा दिल होता है। मोमिन का दिल बहुत बड़ा होता है। मोमिन के दिलों के बारे में कहा गया है कि ये अर्शे इलाही है, अर्शे इलाही है। अब इसको एक वाकया से मैं आपको रोशनास कराता हूँ कि एक मर्तबा किसी ने ख्वाब देखा कि हुजूर, ख्वाब देखा कि मैं अर्शे इलाही को उठाए हुआ हूँ। क्या उठाए हुआ हूँ? अर्शे इलाही को उठाए हुआ हूँ। ख्वाब उमदा, ख्वाब आला देखता है तो हर आदमी इमाम साहब के पास, उलमाए अहले सुन्नत के बाद खानकाह वालों के पास जाते कि हुजूर हमने भी रात में ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। इंसान अपनी अपनी हैसियत से ख्वाब की ताबीर बताता। तो वो आदमी ख्वाब देखा कि मैं अर्शे इलाही को उठाए हुआ हूँ। अल्लाह का अर्श जो सातवां आसमान के ऊपर है, तो ख्वाब बहुत ऊंचा है कि नहीं। कहा कि मैं अर्शे इलाही को उठाए हुआ हूँ। हर आदमी से पूछता, बताइए ना इसकी ताबीर क्या है, इसकी ताबीर क्या है। तो उस वक्त के अक्लमंदों ने कहा, शूरों ने कहा, होशियारों ने कहा कि नादान, तेरा ख्वाब बहुत ऊंचा है और तुम अपने ख्वाब की ताबीर अरे गहरे नब्बे खैरों से पूछते हो, अपना इंसान से पूछते हो। तुम अपने ख्वाब की ताबीर के लिए जुनैद बगदादी की बारगाह में चले जाओ। वो इस दौर के सबसे बड़े आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है, वली कामिल है। वही तुम्हारे ख्वाब की सच्ची ताबीर बताएंगे। अब वो आदमी अपने ख्वाब की ताबीर के लिए हुजूर जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह की तरफ रवा दवा हो गया। जैसे ही शहर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का इज़्तिहाम है, बहुत बड़ी भीड़ है। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है कि लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं, सर ही सर नजर आ रहा है। तब लोगों ने कहा कि मैदान तुम्हें मालूम नहीं है, हुजूर जुनैद बगदादी का वसाल हो गया है। और जब अल्लाह वालों का वसाल होता है तो उनकी नमाज़े जनाजा में कितने लोग शिरकत करते हैं, आपका अंदाजा हुजूर ताजुश शरिया की नमाज़े जनाजा से हो गया कि अल्लाह वाले गए हैं, सब लोग अपनी किस्मत बनाने के लिए इनके जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। अब वो इंसान अश्कबार हो जाता है, उसका दिल लड़ने लगा, उसका होठ कांपने लगा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं जिसके पास आया था अपने ख्वाब की ताबीर के लिए, वही चले जा रहे हैं। मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? मेरा ख्वाब आधा अधूरा रह जाएगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? ये कह कर वो खूब रो रहा है, वो अपनी किस्मत पर मातम कर रहा है। क्या हो गया?
لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ کم بڑی سعادت ہے کہ ایک ولی کامل کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا وقت ہمیں ملا، چلو اللہ کے ولی کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں۔ کم بڑی سعادت ہے کہ اللہ والوں کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کا وقت مل جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ کون ہے ولی اللہ؟ کوئی نہیں جانتا۔ کیا یہ کم بڑی سعادت ہے کہ ایک ولی اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا موقع ہمیں ملا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ انسان بھیڑ کو چیرتا ہوا حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے تابوت کے پاس پہنچ جاتا اور پہنچنے کے بعد اس کے اندر جو تابوت کا جو چار کونا ہے اس کے بیچ میں جہاں پر جو ناش رکھی جاتی ہے وہاں پر وہ چلا جاتا ہے اور اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے کہ حضور آپ کے پاس آئے تھے ہم اپنے خواب کی تعبیر کے لیے، آپ ہی چلے جا رہے ہیں، اب میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو اس تابوت کے اندر سے آواز آئی کہ نادان تمہیں معلوم نہیں، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ تمہارے مقدر میں تمہارے قسمت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم وقت ولی کامل جنید بغدادی کی نماز جنازہ میں شرکت کرو گے اور اس کے جنازے کو تم قادر دو گے، یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم جس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے ہی روح کا تعلق ختم، وہیں سے روحانیت کا تعلق شروع ہوتا ہے۔ دو روحانیت کبھی مرتی نہیں ہے، روحانیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تو آپ اپنی روحانیت کو سنوارئے اور روحانیت کو مضبوط و مستحکم کیجئے اور اپنے آپ کو سنبھالیے اور نیک کام کرنے کی بھی صحیح فہم کیجئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خیر میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن بات آ گئی کیونکہ آپ لوگوں کا انتشار دیکھا، آپ لوگ تو میں نے یہ ساری باتیں کہہ دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچا دعویٰ، جو آدمی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کو کوئی مقام نہیں ملتا، بعد میں فضیلت ہوتی ہے۔ جھوٹی محبت کا دم تو سب بھر دیتا ہے کہ ہاں ہم ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تب تک میں اس کے فلسفہ کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، شعور دیا، عقل دیا، تو فلسفہ کو سمجھیے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ شادی کی محفل ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ کل جو شادی ہونے والی ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔